नमस्कार और सत श्री अकाल। आज हम आपको ऐसी जगह ले आए हैं जहां पर आपको अगर पैसे की बात करें, अगर आप बच्चों के कैरियर के बात करें, तो अगर आपको सचमुच बच्चे का कैरियर बनाना है तो आपको हम आज उस जगह ले आए हैं जहां पर आपको अगर बच्चे की चिंता करनी है, आप ज़रूर उस जगह आइए। जी हाँ, आज हम आए हैं लीगल नैनी सर्विसेज पर, जो एक ट्रैवल एजेंट का भी काम करते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को कैसे कैरियर बनाते हैं उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। हमारे साथ लीगल नैनी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं खुशबू नंदा जी। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लवी बात न्यूज़। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਆਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ब्रांड है साडा और पहले ਇਹਦੇ मैं पूछना चाहूँगा, आज जो आपका सेमिनार था ये किसके रिगार्डिंग था ये सेमिनार? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਨੈਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਨ ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਨੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਨੈਨੀ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਦਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। हाल ही च एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल फड़ा गया 35 करोड़ का स्कैंडल है। तो आपके लीगल नैनी में क्या फ़र्क है? जैसे आपने देखा होगा खून पसीने की कमाई होती है, जो भी पेरेंट्स होते हैं उन्होंने, अगर आप बात करो, एक एक रुपया जोड़कर बच्चे को सेटल करने के लिए उन्होंने जमा किया होता है। आप पर लोग क्यों विश्वास करेंगे कि नहीं लीगल नैनी सर्विसेज पर ही हमने जाना है? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ, ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਦੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰ रहना चाहिए। मैं तो यही मोटिवेट करांगी। ट्रैवल एजेंट के ऑफिस जाते हैं तो जो उसके ओनर होते हैं, तो कम से कम अगर बात करें तो मैं 90% ट्रैवल एजेंट की बात करें तो वो ओनर मिलते ही नहीं है। तो अगर मैं लीगल नैनी की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्यों क्या वो आपसे खुल के मिल सकते हैं, या उनका आपने कोई नंबर दिया जिस पे वो आप पे यकीन करे कि नहीं सीधा डायरेक्ट से बात हो रही है, सीधा डायरेक्टर हमारे साथ बात करते हैं अगर उनको कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं अक्सर ट्रैवल एजेंट देखते वो मिलते ही नहीं, उन्होंने बाहर बिठाए होते, जो उनके स्टाफ होता है वो बिठाया होता है, और जब लास्ट टाइम आता है या तो उनका वो वीज़ा रिफ्यूज़ आता है या फिर उनकी जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं गबन होती है। तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका जो इसका सिनेरियो कैसे आप चलाते हैं उसको? सो किशोर सर, आप पहले भी हमारे साथ बड़े टाइम से जुड़े हुए हो, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि हमारा जितना भी पहले भी आपने सेमिनार में हमारा वीडियो कवर किया था, तो आपने देखा ही होगा हमारे ऑफिस का एक रूल है कि अगर कोई भी बच्चा डायरेक्टली मुझे मिलना चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट रख के किसी भी ब्रांच में मुझे कभी भी मिल सकता है, फिर जाके अपना केस शुरू करवा सकता है। अगर डायरेक्टर ने एक कोई भी दुकान है या कोई भी बिजनेस है, अगर वो डायरेक्टर खोल के बैठा है तो वो मिल नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वो ये नहीं है, चलो टाइम की कोई इशू हो सकता है या एक बार, दो बार, तीन बार, ये नहीं कि आपका सारा फाइलिंग का प्रोसीजर ही तो स्टाफ के थ्रू चल रहा है। तो ऐसा तो मैं पॉसिबिलिटी में नहीं समझती हूँ कि वो वीजा आएगा। अगर जिस ब्रांड में
चाहे कोई भी ब्रांड है, और उसमें एम्प्लॉयर की जो डायरेक्टर है उसकी अगर कोई है ही नहीं है, उपस्थित ही नहीं है, तो वो क्या वीजा आएगा क्या नहीं आएगा। सो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई भी बच्चा हमें मिलना चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट रखे, डायरेक्ट मिल सकता है मुझे किसी भी ब्रांच में। तो खुशबू जी, ये कितनी देर का आपका जो कोर्स है लीगल नैनी, और अगर हम पूरे कोर्स के बाद बात करें जिसने बाहर जाना है, तो कितना टाइम का प्रोसीजर है, अगर हम बच्चों को, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे लाइव भारत न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारी रिफ्यूजल आ चुकी है, अब हम कनाडा नहीं जा सकते। आपकी 4 5 10 बार भी रिफ्यूजल है तो हम उस केस को सॉलिड करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि रिफ्यूजल का मोटिव देखना चाहिए कि रिफ्यूजल क्यों आ रही है, कौन सा पेपर उसमें कम लग रहा है। एम्बेसी तो वीजा देने के लिए ही बैठी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर अच्छा है, आपका जाने का मकसद अगर अच्छा लिखा गया है, तो वो वीजा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जितना भी प्रोसीजर है हमारा, 6 से 8 महीने का प्रोसीजर रहेगा। जितनी भी हमारे ऑफिस से कमिटमेंट करी जाएगी वो पूरी पेपर रिटर्न कमिटमेंट होएगी। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे आ गए हो, अब तो साल लग रहा है 2 साल लग रहा है तो पासपोर्ट पड़ा है पता नहीं कब वीजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल नैनी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है, तो हमें जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो कमिटमेंट देते हैं। सो हम आपको कमिटमेंट देंगे कि 18 से लेके 55 साल तक, मतलब कि 18 to 55 ईयर तक आपका जितनी भी एज के बच्चे हैं वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं विद फैमिली कनाडा का। 1 साल में इस वीजा में हम पीआर हो सकते हैं। इस प्रोग्राम को, पहले क्या प्रोग्राम का नाम था, लिव इन केयर गिवर, अब ये प्रोग्राम हो गया हुआ है होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट प्रोग्राम। जैसे आपने फैमिली की बात की है, तो इसमें कोई फैमिली का भी खर्चा आता है कि नहीं? जिसने नैनी सर्विसेज की, जिसने आपके पास कोर्स किया, उसका सिर्फ खर्चा आता है, कि जो इंक्लूड जब फैमिली भी जाती है उनका भी कोई खर्चा लगता है फिर? सर देखो, मेन एप्लीकेंट का ही खर्चा होता है हमेशा, फैमिली इंक्लूड का तो फैमिली का तो सिर्फ हम वैसी फीस का ही खर्चा आएगा। बट एजेंट लोग क्या करते हैं कि हाँ अगर फैमिली साथ में जा रही है तो उसमें थोड़े पैसे बढ़ा दो, तो उसमें सिर्फ मेन एप्लीकेंट का ही खर्चा आएगा, बाकी तो हम वैसी फीस ही लगेगी जो फैमिली की लगेगी, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है सर। दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात है, थोड़े से खर्चे में आप पूरी फैमिली, यानी कि अगर हम चार फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर की बात करें, अगर हमने ऐसे जाना हो तो कम से कम 40 से 50 लाख का खर्चा आता है। लेकिन अगर आप लीगल नैनी सर्विसेज पर आते हैं, जैसे मैडम ने बोला, एक ही जो जिसने बाहर जाना हो उसी का खर्चा आता है, बाकी फैमिली का जो खर्चा है वो सिर्फ वीज़ा का खर्चा आता है। तो मैम एक और क्वेश्चन है आपसे। आज जब मैं सेमिनार में बैठा हुआ था, इन बिटवीन आपने एक कोर्स का भी बोला, वो था डिजिटल कोर्स जो आपने बोला, तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि एक कहीं ट्रैवल एजेंट्स को लालच होता है कि अगर हम दूसरे साइड अगर उनको कनाडा जाना तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपने क्लियर कट उनको बोला अगर आप इंडिया में भी करना चाहते हो तो आप डिजिटल कोर्स करके आप 10 20 25 हज़ार अपने घर की आमदनी बना सकते हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, और मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये सुनाना चाहता हूँ कि उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप अपनी रोशनी डालिए। एक स्किल कोर्स है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। अगर रियल में कोई भी बाहर जाना चाहता है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, हमारा यूट्यूब पे पेज है सर, लीगल नैनी सर्विसेज। कोई भी वहां जाके सब्सक्राइब करके मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकता है। लीगल नैनी सर्विसेज एक बार जाके वो पेज जरूर चेक करे, उसको वो पेज के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि वो आगे जाके करियर में क्या करना चाहता है। सो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि एक बार वो पेज पे जाके हर कोई जरूर चेक करे। तो मैम, मैं आपके 3 4 5 ऑफिस हैं, लेकिन मैं, चूंकि हम अमृतसर में बैठे हैं, तो मैं ज़रूर अपना आपके माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपका ऑफिस का एड्रेस आप मेरे दर्शक जो देख रहे होंगे उनको ज़रूर अपना ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। सर हमारे सारे ही ऑफिस बस स्टैंड पे है, क्योंकि ये है कि जितने भी बच्चे आते हैं गाँव वगैरह से, उनको ये है कि अलग से कन्वेंस ना कोई लेनी पड़े, जैसे बस उतरे बच्चा डायरेक्ट अकेडमी में आए। तो हमारा जो अमृतसर का भी ऑफिस है वो भी बस स्टैंड पे है, ऑपोजिट पिंगलवाड़ा सिटी सेंटर मार्केट में है, और C77 थर्ड फ्लोर लीगल नैनी सर्विसेज के नाम से बड़ा बोर्ड है वहाँ पे, अब वो चेक कर सकता है। वैसे मैंने जैसे आपको पेज का बताया, तो वो पेज से हमारा फोन नंबर लेके हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट भी रख सकता है। एक और बात है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है कि आजकल कनाडा और इंडिया के कुछ रिलेशंस जो वो है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से ख़राब हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि कनाडा और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से कुछ रिलेशन ख़राब चल रहे हैं। तो कहीं बच्चे घबराए हुए,
तो आप ज़रूर हमें उन बच्चों को बताइए कि घबराने की क्या ज़रूरत है, या अभी वीज़ा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो आप उस पर रोशनी डालिए थोड़ी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशन खराब है, क्या कहते हैं वो कि हर घर में थोड़ी नौक-झोंक चलती रहती है। सो इस टाइम पे वो नौक-झोंक चल रही है, टाइम आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी बहुत, वो क्लियर हो जाएगी। बट अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कनाडा ने इतना अच्छा हाथ बढ़ाया है कि जिन केसेस पे वीजा की कोई उम्मीद नहीं थी उन पे भी बहुत अच्छे वीजास आ रहे हैं। सो इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है फाइलिंग करने का। अगर इस टाइम पे कोई फाइलिंग करता है तो वीजा 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि कनाडा अपनी तरफ से 100% वीजा इस टाइम पे दे रहा है। सो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये नौजोत की वजह से आपके फाइल को कोई नुकसान पहुंचेगा। अभी तक हमारा किसी भी फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि जो वीजा 10 दिन में आना था वो 2 दिन में आया हमारा। तो और भी आप किसी कंट्री से डील करते हो? सर सारी कंट्रीज है हमारे पास, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो दोस्तों, ये हमारे साथ लीगल नैनी सर्विसेज के डायरेक्टर थे। इन्होंने साफ बताया कि कनाडा और जो इंडिया के रिलेशन इस टाइम चल रहे हैं, उस पर जो वीज़ा सर्विसेज में उस पर कोई असर नहीं है। बच्चा जा सकते हैं। और आपको बता दें, जो 10 दिन में, जो उन्होंने बताया कि जो 10 या 15 दिन में वीज़ा आता था, वो सिर्फ अब हफ्ते में आता है। तो मैं समझता हूँ जितने दर्शक हमारे शायद चिंतित थे इस बात पर कि शायद कनाडा और जो हमारा इंडिया है उनके साथ कोई रिलेशन आपस में ख़राब है, कुछ राजनीतिक रिलेशन ज़रूर ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बच्चों पर उस पर कोई असर नहीं है। ये हमारे साथ थे लीगल नैनी सर्विसेज के डायरेक्टर। अगली बार आपको फिर किसी अच्छे जो हमारे ट्रैवल एजेंट है उससे मिलाएंगे। और मुझे लगता है आपको लीगल नैनी सर्विसेज पर एक बार ज़रूर विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे इनका सिनेरियो है, जैसे मैंने देखा है, आज भी सेमिनार में 3, 4, 500 बच्चा इनके पास आया था। देखो दर्शकों, जब तक किसी चीज़ में कोई क्लियरिटी नहीं होती, तो मेरे ख्याल इतनी स्टूडेंट्स जो जमा हुए थे, तो वो मुश्किल होता है। सो आप एक बार ज़रूर, जैसे इन्होंने बोला कि बस स्टैंड पर इनका ऑफिस है, वहाँ आप विज़िट कर लीजिए। अगली बार आपको फिर किसी शख्सियत से मिलाएंगे। मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।